So let's begin this high poly object. Okay, so इसमें आप कुछ holdings ऐड करने हैं. ठीक है, obviously ये हवा में तो नहीं होगा. So I'm going to turn off my grid by hitting G, and if I just go home, so ये हमारी grid है. देख लो, grid के accordingly ये 3 गुना ज़्यादा बड़ा है. ठीक है, and that's fine. Okay, cause हम इसे real world scaling पे बना रहे हैं. So by mean, if we are creating by the real world scaling, that means I'm talking about the realistic lighting going to interact. मतलब जितना real world से वो object बना होगा तो light भी उससे realistic way में interact करेगी. ठीक है, and obviously हम इसमें V-ray lighting use करेंगे तो हमें we want to make sure that we are creating in the real world. Okay, let's talk about the holders and let me check the reference. I think I'm going to add some pipes, these kind of pipes over here. So इसमें कुछ pipes add करते हैं. So we already have the wires, but we need some pipes as well. Okay, so for the pipes, what I can do is let's create a line. Okay, so let's go to side view. So I'm going to hit S for the snapping, और मैं general just 1, 2 and 3 and 4 points and then right click. ठीक है, end the selection. After that I'm going to switch over here to the modifier panel and then just scroll down and just turn on this point, and I'm going to use fill and इसको just curve में बदल देते हैं. ठीक है, एक पे राइट. सो रेंडरिंग से ये दोनों ऑन करते हैं, थिकनेस बढ़ाते हैं. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. हिट एस टू टर्न ऑफ द स्नैपिंग, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि इसका जो पिवट है हमें यहाँ पे मिल रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए था ऐसा. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो सेंटर में आ जाए, बट वी कैन डू दैट. ऑब्वियसली इट्स द ईजीएस्ट पार्ट, नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके, सो इसमें ये पाइप फिट किया. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू यूज इज सेलेक्ट दिस वन एंड जस्ट ब्रिंग डाउन माय पिवट. सो पिवट को नीचे लेके आते हैं. सो सेंटर ऑब्जेक्ट and obviously इसको 0 0 0, obviously the same thing. But if you notice, अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है ऑफसेट है, ग्रिड से थोड़ा सा ऑफसेट है. ठीक है, so what I'm going to do is obviously ये एक ग्रुप में है which is fine. so हमने एक ग्रुप बनाया था if you do remember, और मैं इसको सेंटर में ले आऊँगा. ठीक है, ये थोड़ा सा ऑफसेट में आ गया है, so मैं इसको ऑफसेट में ले आता हूँ. और इसको जस्ट सेट करते हैं. There we go. I'm going to place almost over here. There we go. Once we got this, then I can just use the effect pivot, center object, and obviously make sure we are selecting this object. There we go. और इसको सेंटर में ले आते हैं पिवट को, and there we go, perfect. Okay, now obviously it doesn't matter कि वो इस axis में या यहाँ इस axis में, it doesn't matter. ठीक है, the main point is that कि वो center में होना चाहिए. Now once I got this, then I can switch to the array, which is in tools, array, and I can come over here and use this rotate, and I think I'm going to switch to the y-axis and make sure I'm click on the preview instance,
10 counts, and I can use the array more like 360. There we go. It's nice. I'm going to hit OK. Okay. Once I got this, then I'm going to select few wires and I'm going to open the group. Let's select these wires. Let's get started. So मैं इसमें वायर्स जस्ट कॉपी आउट करूँगा, ठीक है, और इसको स्केल इन करेंगे एंड मेक श्योर इट्स ऑन द कॉपी, नॉट इन इंस्टेंस. If I'm doing the instance, whatever I make the changes over here, it's going to be changes over here as well. Okay, so अगर मैं instance पे करूँगा, obviously यहाँ पे भी changes होंगे, यहाँ पे भी changes. So it's more like a brother and twin brothers you can say, ठीक है. But copy में obviously इन दोनों का कोई relationship नहीं होता, so they are more like divorced, ठीक है. So that's it, okay. And scale it just a bit, and ठीक है. There we go. So I'm going to select these wires. Let's move a little bit back. Okay. Hit copy. Okay, now here's the biggest question. अगर मुझे ये एक एज ए एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? I can turn off turbo smooth and shell, ठीक है. एंड अगर मैं यहाँ पे जस्ट पॉलीगन पे जाऊँ एंड इसके पॉलीगन सेलेक्ट करूँ, लेट्स से ऑल द वे लाइक दिस वन, एंड होल्डिंग डाउन शिफ्ट, तो वो लूप में सेलेक्ट करेगा, ठीक है. एंड अब हम यहाँ से अगर थोड़ी सी सिलेक्शन ग्रो करें फ्रॉम दिस वन, डू सम ग्रो, लेट्स लिटिल बिट श्रिंक, देयर वी गो. Okay. और यहाँ भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वेल दैट्स फाइन. Z प्रेस करूँगा ताकि फ्रेम इट के लिए, एंड देन आई एम गोइंग टू होल्ड डाउन Alt टू deselect दिस एरिया, एंड देयर वी गो. ओके, सो वी गॉट दिस. नाउ अब मैं क्या करूँगा, W प्रेस करूँगा एंड होल्ड डाउन शिफ्ट एंड जस्ट मेक श्योर, actually I'm just going to cancel it. I want to make sure that it's not on constraint पे होगा तो वो उसी फेस को फॉलो करेगा, ठीक है, उस फेस को वो छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है. I want to make sure it's turned off. Hold down shift and just drag it out and there we go. Now अब यहाँ पे एक बहुत important question ये मेरे से पूछ रहा है, I want to clone as an element or I want to clone as an object. Now it's up to you if you want to make as an object or as an element. I recommend keep it as an object. Why? Because जितना separate आपके पास parts होंगे तो आप उतना flexible हो सकते हो, ठीक है. So I'm going to keep it that as an object and I'm going to hit OK. हाँ, इसकी कॉपी निकाली है. टेक्निकली मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट इसके फेसेस को सेलेक्ट किया एंड शिफ्ट प्रेस करके एंड मूव आउट किया, ठीक है. बट जैसे ही मैंने मूव आउट किया, ऑब्वियसली अब मैंने एज एन ऑब्जेक्ट इसे बनाया और ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है. गुड गुड. ओके, नाउ लेट्स गेट बैक ओवर हियर. ठीक है, सो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, लेट्स स्केल इट डाउन. ठीक है, नाउ ऑब्वियसली इसका पाइवट पॉइंट देख रहे हो कहाँ पे है, थोड़ा सा ऑफसेट हो रखा है. सो आई एम गोइंग टू गो टू द माय इफेक्ट पिवट ओनली एंड सेंटर ऑब्जेक्ट एंड वी आर गुड टू गो. I'm going to just scale it down. थोड़ा सा. There we go. So मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और इसमें से शेल एंड टर्बो स्मूथ दोनों ऑन करते हैं. जैसे ही ऑन करता हूँ, I get this. And the same thing I do over here. But for this one, I'm going to turn on the turbo smooth. Okay. इसके iteration only 2, not more than that. You can just go by 3, but that is fine. After that you can turn on isoline display, जो उसका kind of a base mesh आपको दिखाता है. ठीक है, so isoline display पे sub D आते हैं, ये subdivision version है, और isoline display पे is more like a base version उसका दिखाता है. ठीक है, isoline display. ये स्विफ्ट लूप का ऑप्शन कहाँ से आता है? स्विफ्ट लूप का ऑप्शन यहाँ पे आएगा
जब हम पॉलीगन मॉडलिंग करेंगे. ओके सो let's select these three, scale it down हल्का सा. ठीक है, let's move all the way here. ठीक है, now there's a issue. यहाँ पे देख रहे हो, and how we going to resolve this issue? We can actually the best part is that we are still in the spline. So मैं क्या करूँगा, इसमें से ये दोनों हटा देता हूँ अभी. Let's select this one. Let's go to the front view, turn on this action, and let's come. I'm going to hit F3 and to see the points. If I just select this one, I'm going to have 3 again. So अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास ये एक पॉइंट है. Now let's switch to something like local or maybe gimbal. No, let's try screen, let's try parent. So I'm going to switch to the view actually for right now. मैं क्या करूँगा, हल्का सा इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ. ठीक है, और फिर सॉरी आपने अलग-अलग अप्लाई कर रहे थे, उसके बाद आपने उठाया. हाँ, हल्का सा इस पॉइंट को मैंने हल्का सा ऊपर की तरफ शिफ्ट किया ताकि इसमें गैप मेंटेन हो जाए. एंड देन आई कैन जस्ट मूव दीज पॉइंट्स, जिससे मैं इसमें और एक और इंटरेस्टिंग शेप क्रिएट कर सकता हूँ. राइट, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, एंड विच इज़ फाइन. ठीक है, सो मैं इसकी कॉपीज क्रिएट करता हूँ. लेट्स से 3. There we go. Let's do the same over here. 6. And obviously gap बहुत ज़्यादा था, which is fine. तो वो obviously जितना मैंने उस पर gap दिया वो उसको भी calculate करेगा. Once I'm going to hit copy, then I'm going to make 5. There we go. I think I'm going to delete this last one, and we are good to go. ठीक है, nice. So let's get back on track. Now अब इसके ये साइड में जो क्रेन्स हैं इनको देखते हैं. So ये काफ़ी मैकेनिकल है, एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ दैट कि ये डिटेल, इसकी जो डिटेल्स हैं बहुत कम दिख रही है. मेरे को भी इनफैक्ट इसकी जो डिटेल्स है बहुत कम दिख रही हैं, बट स्टिल हैव टू मेक इट. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, टॉप व्यू से चलता हूँ. स्टार्ट फ्रॉम द टॉप व्यू और लेट्स क्रिएट अ बॉक्स. ठीक है, इसको हाइड देते हैं, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, और इस बॉक्स को लेट्स पुट इट समवेयर ऑलमोस्ट देयर. ठीक है, सो ये हमारा फ्लोर होगा. ठीक है, दिस पार्ट इज गोइंग टू बी आवर फ्लोर. इसको मैं स्केल इन करता हूँ. ठीक है, एंड अब मैं एक पार्ट इसमें डिटेलिंग बनानी शुरू करता हूँ. ठीक है, सो सबसे पहले कुछ सेगमेंट्स ऐड करते हैं. लेट्स ट्राई 3x3x3. ठीक है, and convert to editable poly. Select the faces. ठीक है, और इसमें से ये दो सेलेक्ट करता हूँ एंड राइट क्लिक एक्सट्रूड. इसको एक्सट्रूड आउट करूँगा. ठीक है, एंड देन दिस वन, oops, make sure ये दोनों selected हो. Hit accept and right click extrude. ठीक है, and there we go. ठीक है, इसके बाद टॉप व्यू में चलते हैं. Let's hit 1 for vertex selection and select all these vertex and just scale them out. ठीक है, इसको स्केल इन करते हैं हल्का सा. ठीक है, सो बेसिकली मैं यहाँ पे मैकेनिकल पार्ट्स ऐड कर रहा हूँ. ठीक है,
not bad. So let's add swift loop. There you go. So अगर ऐसा नहीं आ रहा तो आपने रिबन ऑब्वियसली ऑफ किया हुआ है, सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ओवर हियर शो फुल रिबन, और जैसे ही जब क्लिक करोगे तो वो इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। स्वीट लूप का मतलब कि लूप अलग से ऐड करना, हाँ लूप ऐड करने के लिए, ठीक है। भैया वैसे तो हम वो भी कर सकते हैं ना, इसको इंसर्ट कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ कनेक्ट, इंसर्ट और कनेक्ट में क्या डिफरेंस है भैया? कनेक्ट जो होता है उसमें आप पर्टिकुलरली एज सेलेक्ट करते हो, हाँ और डिफाइन करते हो कि मुझे इस दोनों के बीच एज में फ्लो में और एजेस चाहिए, सॉरी जस्ट गो टू कनेक्ट एंड देयर वी गो, ओके। बट अगर इंसर्ट की बात करें, सो आई हैव टू स्विच टू द फेसेस मोड। सो मैं फेस मोड पे आऊँगा एंड देन राइट क्लिक, एंड जैसे ही इंसर्ट प्रेस करता हूँ वो फेस के अंदर एक और फेस ऐड कर देगा, ठीक है, एंड ऑल्सो मेंटेनिंग द दिस एज फ्लो, हाँ। ठीक है। तो जब हम दोनों पे टर्बो स्मूथ लगाएंगे तो भैया दोनों में फर्क अलग अलग आएगा? दोनों पे, हाँ अगर कनेक्ट कर रखा कहीं पे और कहीं पे इंसर्ट कर रखा है। हाँ एग्जैक्टली, कनेक्ट जो है वो बेसिकली एजेस आप ऐड कर रहे हो। सो अभी मैं यहाँ पे क्या ऐड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सपोर्टिंग लूप ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। कॉर्नर्स में जाके यहाँ पे सपोर्टिंग लूप ऐड कर रहा हूँ। सो इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि जब मैं टर्बो स्मूथ करूँगा तो ये सपोर्टिंग लूप इस कॉर्नर को होल्ड रखेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक क्रीज क्रिएट हो जाती है। सो हम यहाँ पे काइंड ऑफ अ क्रीजिंग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट। सो मैं सपोर्टिंग लूप ऐड करूँगा यहाँ पे, देयर वी गो एंड देयर वी गो, ऑलमोस्ट देयर। सो नाउ रिमेंबर आई एम वर्किंग इन हाई पॉली ज्योमेट्री पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर वी गो, ठीक है। एंड इसको कंप्लीट करने के बाद आई कैन जस्ट मेक अ डुप्लीकेट, और एक्चुअली आई एम गोइंग टू हिट कैंसिल फॉर राइट नाउ, ठीक है। एंड लेट्स डू select these faces, right click insert, देख रहे हो वो अंदर एक एज लूप बना रहा है, right click and hit extrude all the way up, something like that, hit accept, ठीक है। यहाँ पे कुछ एज लूप ऐड करते हैं, स्विफ्ट लूप पे आते हैं, let's select this one, ये सपोर्टिंग लूप के लिए। टर्बो स्मूथ लगाएंगे ना, तो जब टर्बो स्मूथ लगाने के बाद कैसे सिंपल स्मूथ हो जाता है। हाँ बट अगर ये लगा दोगे ना, स्विफ्ट लूप ऐड करोगे, मतलब सपोर्टिंग लूप लगाओगे, तो वहाँ पे क्रीज आ जाएगी, मतलब वैसे एकदम परफेक्ट गोल नहीं होगा, वहाँ पे कैसा क्रीज टाइप आ जाएगा। एग्जैक्टली, वो काइंड ऑफ होल्ड कर देगा उस क्रीज को, ठीक है। दैट्स ग्रेट। सो एक और स्विफ्ट लूप ऐड करते हैं यहाँ पे, there we go। सो एक टर्बो स्मूथ लगा के देखते हैं कैसा दिख रहा है। सो TU टर्बो स्मूथ अप्लाई, इटरेशन बढ़ाते हैं, लेट्स से समथिंग लाइक 2 और मे बी 3, ठीक है। ऑल्सो मेक श्योर आपका पॉली काउंट यहाँ पे कितना है, ठीक है। अगर ये पॉली काउंट यहाँ से ऑन करना है, सो यू जस्ट स्विच टू द प्लस साइन, कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट, go to the statics and make sure total plus selection is on and show statics in action view. Hit apply and hit OK, and there you go. Okay, not bad. हल्का सा यहाँ पे issue है. I'm going to switch over here and I'm going to accept. I'm going to hit F3 and let's see issue क्या है. Okay, issue क्यों आ रहा है? If you notice, यहाँ पे एक edge है लेकिन यहाँ पे edge नहीं है. So I'm going to switch to swift loop. एंड यहाँ पे एक एज ऐड करते हैं एंड जस्ट TU टर्बो स्मूथ अप्लाई, जस्ट वांट टू मेक श्योर इट्स स्टिल कमिंग आउट. लेट्स सी क्या इशू क्रिएट हो रहा है अभी भी. पीछे एक और स्विफ्ट लूप ऐड कर दो भैया उस लाइन के पीछे साइड में. आई थिंक इट्स कमिंग ओवर हियर, इट्स कमिंग ओवर हियर, इट्स कमिंग ओवर हियर, इट्स कमिंग ओवर हियर. Now it
ठीक है, यहाँ पे ठीक है। लेट मी चेक, कोई पॉलीगन तो ओवरलैप तो नहीं कर रहा। सो जस्ट इसको सिलेक्ट करूँगा एंड जस्ट वांट चेक कि कोई यहाँ पे पॉलीगन ओवरलैप तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा इशू तब भी आ रहा है, सो आई एम गोइंग टू डबल क्लिक ओवर हियर। मैं इसको थोड़ा सा पास में लेके जाऊँगा, ठीक है, ऑलमोस्ट ओवर हियर, ठीक है। सर लूप ही क्या सर? हाँ, ये आपने क्या किया? इसको जस्ट सेलेक्ट किया, डबल क्लिक, वो लूप सेलेक्ट हो गया और फिर उसको मूव कर दिया नीचे की तरफ। सो लेट्स ट्राई अगेन, टर्बो स्मूथ। अभी भी आ रहा है और आई थिंक यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फेस या समथिंग एल्स। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड ये भी ठीक है। पॉइंट्स ठीक है। लेट्स ट्राई दिस वन। इस एज को सेलेक्ट करते हैं, इसको हल्का सा मूव करते हैं बैकवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे एक और एज ऐड करके देखते हैं, ठीक है। टर्बो स्मूथ स्टिल कमिंग, इटरेशन, ओके। सर वो अंदर को है कुछ? नहीं, अंदर नहीं। The thing is that, okay, I got it. Think I got it. I'm not sure, but I got it. So ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, मैं इस एज को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस, रिमूव दिस, सेलेक्ट दिस एज, कंट्रोल बैक स्पेस, select this edge, control backspace। मैं step backward जा रहा हूँ, ठीक है, just to check। select this, control backspace, ठीक है, control backspace, ठीक है, दोनों साइड से करेंगे। hold down control to select both and control backspace and control backspace, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पे स्मूथ कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सो लेट्स चेक। सो सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा, सो लेट्स गो टू द यूज नर्व सब डिवीजन। मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ, ठीक है। सो ऑब्वियसली उसका आउटपुट कुछ अजीब सा रहा है, विच इज़ फाइन, ठीक है। मैं यहाँ से इसका कलर जो है चेंज कर रहा हूँ, समथिंग लाइक लेट्स से ब्लू, ठीक है, एंड इसका कलर समथिंग लाइक रेड, all the way। इसकी इटरेशन बनाते हैं। नाउ इट ऑलमोस्ट वर्क लाइक एज ए टर्बो स्मूथ, बट इसमें क्या है कि हम लाइव ऑब्जेक्ट में स्विफ्ट लूप ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स से हम यहाँ पे एक स्विफ्ट लूप ऐड करते हैं, देख लो कैसे आ रहा हो। सो ये सब डिवीजन होता है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू ऐड ओवर हियर, ठीक है, हियर, ठीक है। और इससे अब हमें, हाँ देखा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, देखा। सो दैट वाज द इशू, ठीक है। सो दिस इज द फास्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो लाइव प्रीव्यू में क्या होता है कि आप प्रॉब्लम को इजीली देख सकते हो, कैच कर लेते हो ऑब्वियसली। सो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उससे। Some edge over here, okay, there we go, ठीक है। So I can turn off this after that, then I can switch to the turbo smooth, ठीक है। iteration बढ़ाते हैं, क्या आपने ऑफ कर दिया? हाँ मैंने ऑफ कर दिया। और अब अगर मैं देखूँ वहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो मैं इसमें वो मटेरियल ऐड करूँ जो हमने बनाया, ठीक है। सो ये एक जस्ट बेसिक मटेरियल जिसमें मैंने स्पेक्युलैरिटी ऑन की हुई है, ग्लॉसिनेस 57 दी हुई है, और इसका फ़ायदा ये है कि हम इसकी शाइनीनेस देख सकते हैं कॉर्नर्स में, ठीक है। इसमें यहाँ पे भी देना है, जस्ट वन मोर, इसमें क्विकली ऐड करूँगा। एंड इसका जो वायर फ्रेम है समथिंग लाइक ब्लैक, एंड स्विच टू द स्विफ्ट लूप। सो मेक श्योर मैं दोनों साइड में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। There we go.
takes a little bit time, but once you get used to it, and it's problem solved. ओके सो रेदर देन मैं बार बार इस लिस्ट में जाऊँ और ऐड करूँ, मैं इसकी जगह यहाँ पे कुछ बटन्स ऐड करूँगा. सो मैं जस्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगर मॉडिफाई सेट पे जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे टर्न ऑन करता हूँ शो बटन्स. सो यहाँ पे ये सारे बटन्स ऑन हो जाएंगे एंड इसे कन्फिग करते हैं हम. सो ऑब्वियसली मैं इसे जस्ट टी सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको जस्ट मूव आउट कर देते हैं और मुझे अभी सिर्फ 6 बटन चाहिए. सो सबसे पहले मेरा होगा लेट्स से टर्बो स्मूथ. सो TU टर्बो स्मूथ, इसको जस्ट यहाँ पे डाल देता हूँ. ठीक है, एंड ऑब्वियसली अगर मैं फर्दर आगे जाऊँगा सो आई कैन ऐड मोर बटन. सो अभी के लिए मैं ओके करता हूँ एंड आई एम गोइंग टू कीप दैट टर्बो स्मूथ. ठीक है, तो यहाँ पे टर्बो स्मूथ बटन प्रेस किया एंड देयर वी गो. ठीक है, स्मूथ और टर्बो स्मूथ अलग अलग है. या टर्बो स्मूथ में क्या होता है कि वो डिविजन से ऐड करता है, बट स्मूथ में वो नॉर्मल्स को सिर्फ स्मूथ कर देता है. ठीक है, ओके सो ये जस्ट एक बेसिक अभी था, अभी जस्ट हमने स्टार्टअप किया. नाउ अगर अब हमें इसमें नट एंड बोल्ट्स ऐड करने हो सो उसके लिए मैं एक न्यू टेक्निक यूज़ करूँगा. सो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स क्रिएट करूँगा. ठीक है, या हम इसकी जगह ऑटो ग्रेड भी कर सकते हैं इफ़ वी वांट. सो ऑटो ग्रेड कैसे काम करता है, I just click on the box, auto grid, and notice मेरा कर्सर जो है इस mesh के ऊपर आ रहा है. So I just click and drag it out, and there we go. See that? Most powerful thing. Okay. Yeah. हमें बाद में कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर लाने के लिए. Exactly. वो directly उसी के ऊपर mesh के ऊपर. Exactly. ठीक है, सो ऑटो ग्रिड से यहाँ पे आ गया. अब मैं क्या करूँगा, इस पर लेट्स से आई एम गोइंग टू अप्लाई टर्बो स्मूथ. ठीक है, पहले एक्चुअली मैं इसके सब डिवीजन जो है अभी 1 by 1 कर देता हूँ और ऑल्सो वांट मेक श्योर ये 50 by 50 हो. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर. हाँ, लेंथ विड्थ हाइट मैंने परफेक्ट स्क्वायर पे कर दिया और इसके सब डिवीजन जो है 1 by 1 कर दिया. ठीक है, वंस आई गॉट दिस देन आई एम गोइंग टू टर्न ऑन टर्बो स्मूथ और जैसे ही ऑन करता हूँ आई गेट समथिंग लाइक दिस. ठीक है, इसका वायर फ्रेम देखते हैं. सो इसका रीज़न क्या है कि मैं ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें परफेक्ट क्वाड है. आई मीन एवरीथिंग इज़ 4 साइडेड फेसेस. ठीक है, सो राइट क्लिक करते हैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली. टॉप व्यू में चलते हैं, हिट 1 एंड लेट्स सेलेक्ट दीज फेसेस. Select and hit delete. Let's move this object a little bit backward. So मैं इसको center पे करूँगा, effect pivot, center object. Let's move backward just थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा. ठीक है, and मैं इसके again use knobs on करूँगा, ट्रेशन बढ़ाते हैं something like this. इसको on करते हैं. Let's make something like blue and let's select this one. Let's go to all the way red. इसके बाद में बंद करना ही पड़ेगा. क्यों? So select करने के बाद मैं border पे जाऊँगा. Let's switch to the border and यहाँ पे मैं क्या करूँगा, just going to scale out. ठीक है, and one button, yeah, holding down shift and then just upwards थोड़ा सा and then just okay, there you go. Now obviously it's more like a cap. It's looking like a cap. ठीक है, but that's fine. So मैं इसको just scale in करूँगा हल्का सा. ठीक है, in fact यहाँ से तो नहीं, there you go. Okay, now मैं इस पे यही मटेरियल असाइन करूँगा. Let's switch to something like 4 times. इसका वायर फ्रेम भी something like black. और मैं इस पे जस्ट ओवरलैप कर दूँगा. तो इससे क्या होगा कि if I just move over here, just get it down almost like that. इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं. ठीक है, and if I hit F4,
look like, हाँ देख रहे हो? नट बोल्ट की तरह. Exactly. So वो kind of a nut bolt हवा कर रहा हूँ face पे, ठीक है? So let's hold down shift and drag it out. Get a copy. And actually मैं इसकी copy नहीं करूँगा. I'm going to keep it as an instance. So अगर मैं इस पे change करूँ obviously. सब पे हो जाए. Exactly. Let's bring them down. There we go. सर कॉपी ले रहे हो. Yeah. Oops, sorry. I just Chance लेना चाहिए. make sure that I want to keep it as instance. And switch to instance. Okay. Just going to move out. Instance. Let's bring them down. Somewhere here. Okay. Let's move over here. And then hold down shift and just drag it out. Okay. So as you can see कितना खतरनाक बन गया. एक बेसिक सा ऑब्जेक्ट था, क्या से क्या हो गया. ये हम बना क्या रहे हैं अभी हम? ये हम काइंड ऑफ अ क्रेन बना रहे हैं जो उसको होल्ड करेगा इस इंजन को, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू हिट ओके. हिट ओके. और इस बार मैं जस्ट 2 पॉइंट सेलेक्ट करूँगा. जस्ट गोइंग टू ब्रिंग इट डाउन, ठीक है. एक्चुअली ये भी पॉइंट फिल अप कर देते हैं. देयर वी गो. नाउ ऑब्वियसली मुझे सेम थिंग ऑपोजिट साइड में भी चाहिए एंड दैट्स फाइन, कोई बात नहीं. उसको हम सेट कर सकते हैं. इसको हम टॉप व्यू से सेलेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन जस्ट ब्रिंग देम बैक. देयर वी गो. जब हम ये टॉप व्यू से सेलेक्ट करते हैं तो सारी चीजें सेलेक्ट होती है ना. Yeah. नीचे की भी सेलेक्ट हो गई होंगी. अब जैसे मैं ये सारे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली नीचे की भी चीज़ें सेलेक्ट हो रही हैं. सो आई कैन डीसेलेक्ट दिस पार्ट एंड जस्ट ब्रिंग देम बैक. देयर वी गो. Okay, problem solved. Now what I'm going to do is I'm going to switch to this wireframe mode and select all these, and actually I can do just select all this and just deselect this part. Okay, alt से deselect कर सकते हैं. Okay, now once I got this, then I can do go to group and make nuts. And so मैं इसका pivot point जो है इस ऑब्जेक्ट के ठीक सेंटर पे करूँगा. इफेक्ट पिवट ओनली एंड सेंटर ऑब्जेक्ट. जस्ट मूव इट आउट ऑलमोस्ट ओवर हियर, ऑलमोस्ट टू द सेंटर पॉइंट, ठीक है. सो अगर हम ये देखें, ये लाइन इसकी काइंड ऑफ अ सेंटर पॉइंट है. डजंट नीड टू बी एग्जैक्ट बट क्लोज इनफ. जस्ट ऑलमोस्ट देयर. देयर वी गो. Almost there. There we go. So just zoom out, turn off, and then I can go to mirror and I want to switch to the y-axis. So y पे switch करेंगे and I want to copy. Okay. Once I done, then I can hit OK and top view से चलते हैं. So align them. Since it's a group, सब properly aligned होंगे and there we go. Copy ली थी. Okay. So हमने group की copy ली थी and we got this. ठीक है, एक basic सा simple object, nothing fancy. Let's go further. इसी की 2-3 कॉपी ले लो ये पूरे इसकी. Basically जब बात आती है हाई डिटेल ऐसे ऑब्जेक्ट की, सो व्हाट एग्जैक्टली आई वुड से कि 2-3 एटलीस्ट ऑब्जेक्ट्स बना लो एंड देन उसको रिपीट करो साइमल्टेनियसली सो दैट गेट लुक कॉम्प्लेक्स. ठीक है. सो सेकंड ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक और. वो जो उधर एक लाइन आ रही है, ये कैमरे वाली लाइन आ रही है. हाँ ये वाली. ये दैट मीन्स ग्रुप ओपन है, दैट्स वाई ये लाइन्स आ रही है. ठीक है, अदरवाइज ये लाइंस नहीं आती. ठीक है. सो लेट्स स्विच टू द बॉक्स. लेट्स गो ओवर हियर. जस्ट ड्रैग इट आउट. ओके, देयर यू गो. लेट्स सी. Just gonna put
ठीक है, मूव इट बैक, ठीक है, मॉडिफाई में चलते हैं, गिव सम सेगमेंट्स, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, 3x3x3, and convert to editable poly. Let's switch to this front and almost there, ठीक है। So मैं कुछ faces select करूँगा, this one, and before that I think I would select this edge and move just a bit. This goes actually control backspace, ठीक है। एंड मैं इसमें से ये वाला पार्ट सेलेक्ट करता हूँ, दिस वन, एंड राइट क्लिक एंड हिट एक्सट्रूड, दोनों साइड से एक्सट्रूड आउट करते हैं, ठीक है। तो मैं काइंड ऑफ उसके सरफेस पे एक ग्रिप सी बना रहा हूँ ताकि वो होल्ड कर सके सरफेस को, ठीक है। सेलेक्ट दिस वन एज वेल, राइट क्लिक एक्सट्रूड, ठीक है। Let's pull it back. टेपर चाहिए तो कहाँ से? एंड से You can do that. You just select the faces and just taper them like that. अच्छा, So, actually, what I'm going to do after tapering this down, I can just bring this downward. Yeah, exactly. Kind of like surface create कर देगा, which is kind of good. Okay, so let's switch to face and let's select the faces. मैं तीनों faces select करूँ and just extrude out, ठीक है। Select this, hit OK, right click extrude, okay, okay, and इसका एक्चुअली थोड़ा सा स्केल डाउन करते हैं, ठीक है। Now these things obviously takes time, ठीक है, ये obviously time लेती है, but once you get the flow then obviously it's easy to do it. So I'm going to switch to something like, let's say, swift loop, and add some more loops over here, 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 and यहाँ पे कुछ क्या, okay, right click, let's say bevel, and इसको थोड़ा, oops, क्या किया था भैया? Insert just या मैंने bevel किया है, अच्छा, bevel. bevel. Okay, so once I got this bevel, दोनों तरफ थोड़ी सी complex shape है, yeah. इसमें भी थोड़े भैया नट बोल्ट डाल दो, वो कर सकते हैं, just looking for adding more details अगर हम इस पे ऐड कर सकें, yeah. अगर कोई चीज ग्रुप में है, ग्रुप में से मैंने वो सिर्फ एक चीज लेनी है, कैसे लूँगा? So उस ग्रुप को just open कर लो and then उसमें से आप वो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। आप अभी करोगे ना? अभी करता हूँ अगर बनता है। एक्चुअली मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह से बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग लूप डालता हूँ एंड जस्ट सेलेक्ट दिस वन, राइट क्लिक एंड हिट एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में ध्यान रखना नीचे भी फेसेस आएंगे यहाँ पे, और जनरली हमें अब नीचे के फेसेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसकी जगह हमारा नीचे फ्लोर आ जाएगा। सो वी कैन डिलीट दिस पार्ट। सो आई एम गोइंग टू ऑल दिस, ज़रूरी नहीं है बट ऑब्वियसली यहाँ पे देख लो फेसेस जैसे ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे ग्लिच क्रिएट हो रहा है। सो ग्लिच ना हो, सो आई एम गोइंग टू जस्ट डिलीट एंड देयर वी गो। यू कैन कीप दीज फेसेस इफ़ यू वांट बट इट्स अप टू यू। जरूरी होते हैं मतलब उनका कोई आगे कोई काम होगा। अगर सपोज करो लेट्स से हम इस ऑब्जेक्ट को मूव आउट करवाते हैं और लेट्स से ये इसका व्यू नीचे से भी आता है, सो ऑब्वियसली ये ज़रूरी है, बट सिंस इट्स नॉट गोइंग टू मूव आउट
ये ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है यहाँ पे, सो ऑब्वियसली नीचे फेसेस जो दिखेंगे नहीं वो नेसेसरी नहीं है, फिर तो उन्हें डिलीट कर सकते हो, ठीक है। Okay, so once we got this, let's go to Swift loop, add some loop. So once I'm going to start adding the Swift loop, that means I'm going to do the turbo smooth. कभी कभार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, but you need to go precisely. There we go. Okay. Let's add one more over here. Okay. Over here. जितना हम करेंगे उतना स्मूथ होगा ना सर। Yes, exactly. ये creasing के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ, just to get the crease. अगर भी हम एक ही जगह एक दो एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं गलती से, हमने मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स जगह और वहाँ पे हमने एक दो कर दिए, हाँ, that's fine. No worries. कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई इशू नहीं होगा. बट जनरली आई रेकमेंड कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप उसका रेजोल्यूशन भी बढ़ा रहे हो, एंड ऑब्वियसली उसका रेजोल्यूशन बढ़ेगा तो वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हैवी होगा, एंड देन इट्स गोइंग टू बी, वो ज़्यादा कंप्यूटर रिसोर्सेज यूज़ करेगा, सो उससे कंप्यूटर तुम्हारा लैग करेगा, जस्ट नॉट यू वांट इट. मतलब कि जहाँ लुक करो वहाँ पे ये ऐड कर मतलब ऐसा नहीं कि पीसी फट ही जाएगा ऑब्वियसली, बट समथिंग लाइक कि तुम्हारा सिस्टम हैंग करेगा, स्लो हो जाएगा, एग्जैक्टली, क्योंकि वो उसके रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है. So just going to add precisely. There we go. क्या हो गया? अरे कोई बात नहीं, अरे बैठ जाओ, कोई बात नहीं. Okay. So let's check with the turbo smooth क्या रिजल्ट है. सर इसको ब्लू रख वो तो बाद में कलर चेंज कर देंगे, बट आई वांट जस्ट सी द रिजल्ट. ठीक है, सो यहाँ पे टर्बो स्मूथ की जैसे ज़रूरत है. ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू अगेन, switch to something like use knobs subdivisions and down on iteration something like 3, and इसका कलर भी चेंज करते हैं. मैं इसको टर्न ऑफ कर दूँगा. There we go. मैं इसको ऑफ ही कर देता हूँ. Okay, so I'm going to switch something like blue, and okay, switch to something like red. ये just selection purpose के लिए. Okay, and iteration और बढ़ाता हूँ, say something like 3 is enough I guess. Okay, let's go to Swift loop. And actually इसका already color भी red है, so before that what I'm going to do is select the object, go to materials, ये assign करते हैं material so that हम इसे easily से देख सकें. इसका wireframe भी black करते हैं, and then I'm going to turn on snap gauge. Okay, then I'm going to use the Swift loop, and अगर हम यहाँ पे देखें, there we go. Almost getting close. Sometimes it's a little bit harder कि selection कैसे add की जाए. Once we get the flow, we can add more and more. Okay.
फिर आपको कैसे फील हो रहा है कि यहाँ पे देना चाहिए? सी मैं उसके एज को देख रहा हूँ ऑब्वियसली, देख रहा हूँ कितना टाइट हो रहा है वो। हाँ जी, स्मूथ सा नहीं हो रहा ना। नाउ हियर इज़ द थिंग, यहाँ पे मैं बना तो रहा हूँ, मुझे ऑपोजिट साइड में करना चाहिए, राइट? सो आई कैन डू एड एन एज ओवर हेयर। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो बिल्कुल सेंटर पे एक एज क्रिएट हो जाएगा और मैं इसकी हाफ डिलीट करके मिरर कर सकता हूँ। आई कैन डू दैट एज वेल, बट जनरली यहाँ पे आई थिंक इट्स फाइन। सो वांट टू टर्न इट ऑफ और एक बार लो रेस पे भी देख लेते हैं कुछ स्टोरेज। सो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 एजेस हैं, यहाँ पे एक सिंगल एज है। सो मैं एज सेलेक्ट करूँगा एंड लेट्स डू ऐड वन मोर एज, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ओके, सो अगेन यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है सेलेक्ट करना। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस वन, हिट रिंग, राइट क्लिक, कनेक्ट। इसको मैं स्लाइड करूँगा ऑलमोस्ट नियर बाय, प्रिसाइसली होने की जरूरत नहीं है बट उसके ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए, ठीक है। एंड आई कैन स्विच टू टर्बो स्मूथ एंड increase the iteration and obviously select isolate display. There we go. Okay, and we are getting some point. So अब हाई डिटेल में ये बनना शुरू हो रहा है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे ऐड होने की ज़रूरत है, राइट? एक बार जस्ट डिलीट करता हूँ। Again, one more time, comes over here. Let's add a swift loop here. That. This one is also looking fine. And just यहाँ पे भी, just for safer side. Okay. Great. ना इस वक्त बॉक्स में 1448 पॉलीगन्स है, बट टोटल जो है यू कैन सी द नंबर, राइट? 4379040. ओके, एंड ऑब्वियसली वी आर डीलिंग विद द हाई पॉली, सो मैं इसे हाई पॉली में ही रखूँगा। ओके, सो लेट्स सी, सेलेक्ट एंड टर्बो स्मूथ एंड द इटरेशन. Let's go to isolate display and now it's looking much better, very much better. That's what I was looking for. आपने भी कुछ क्लिक किया था उसमें पे Isolate display, हाँ जी, ये क्या है? ये क्या करेगा देख रहे हो? अभी यहाँ पे कितना लो वर्जन दिखा रहा है, बट जैसे ही ऑफ करता हूँ अब मैं उसका सब डी वर्जन देख रहा हूँ, अच्छा, ठीक है। सो आइसोलेट उसका लो वर्जन दिखाएगा, ठीक है। there you go. ओके, सो अब देखते हैं, अब इसमें अगर हम आए, जस्ट मैं इसको हाइड करता हूँ अभी के लिए, हाइड सिलेक्शन, एंड एक्चुअली हाइड भी नहीं करूँगा इसको। लेट्स गो टू द F3 वायर फ्रेम मोड और जस्ट यहाँ से इसके ये जो नट बोल्ट्स हैं, ग्रुप को ओपन करूँगा और सिर्फ इन तीनों को सिलेक्ट करके डिलीट करूँगा क्योंकि ये विजिबल नहीं है उसमें। सो ऑब्वियसली अब इनकी ज़रूरत नहीं, एग्जैक्टली। सो सिलेक्ट करते हैं इन्हें भी, ग्रुप ओपन एंड लेट्स सेलेक्ट दीज 3 ones, delete, and now I can close the group. Okay, so I can go to group, close, there we go. Select this one, group, close, there we go. Okay. Okay. Looking great. Okay. So obviously now we have at least a startup. So just a quick render निकाल के देखते हैं कैसा लग रहा है. Just a quick render, ठीक है. So let's go to selected primitive Vray and Vray plane. So मैं यहाँ पे just plane add करता हूँ. Let's add a single, just a basic simple light, free light. Let's go to top view. And मैं just यहाँ पे एक make sure I'm in the Vray. So Vray light and just drag it out. इसको मैं center पे create करता हूँ and just move it out. Okay. Move it upwards. और इसके let's say stance पे रखते हैं, let's say 5.
ओके नॉट बैड 5 लाइट्स ठीक है और ये इंस्टांस पे ऑब्वियसली मैं एक लाइट को चेंज करूँ तो सारे सब में वैल्यूज चेंज होंगी ओके सो आई एम गोइंग टू हिट शिफ्ट F फ्रेम इट ठीक है एंड इंटेंसिटी रखते हैं अराउंड लेट्स से 300 अभी के लिए एंड जस्ट क्विक सेटिंग्स में इसकी कुछ क्विक सेटिंग्स अप्लाई कर रहा हूँ ठीक है ऑब्वियसली रेंडरिंग में हम बाद में आएंगे बट फॉर राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट दिस वे ठीक है everything looks fine so let's hit render and see what comes out okay it's not coming out why is that let me check make sure मेरा exposure जो है मेरा exposure everything looks fine okay इसकी value और increase करके देखते हैं let's say 500 I'm going to hit render see one more time and it's still not coming out why is that so let me check let me close this group okay and everything looks fine make sure मैं Vray render पे हूँ I just need to check so issue क्या था actually जो हमारा plane है वो हमारा कैमरे आई मीन जो हमारा कैमरा था वो प्लेन के नीचे था सो दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग सो जो हमारा प्लेन है मैं इसको साइड व्यू से जस्ट नीचे करूँगा एंड एक्चुअली मैं इसको इससे अलाइन करूँगा ठीक है सो ऑलमोस्ट इतना लेके चलते हैं देयर वी गो और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ एक्चुअली आई कैन क्रिएट अ कैमरा so let's create a camera quick camera say target and let's bring it from over here there we go let's move it up hit C for camera view cameras में कुछ settings करते हैं let's say 15-20 mm ठीक है थोड़ा सा ऑब्वियसली इसको डिस्टॉर्ट भी करूँगा इसको जस्ट मूव अप करता हूँ देयर वी गो लेट्स टेक अ क्विक रेंडर ओके देयर यू हैव इट सो जस्ट टेक आउट अ क्विक रेंडर ऑफ दिस ऑब्वियसली हम इसकी मॉडलिंग कंटिन्यू करते रहेंगे एंड या सो इट्स लुकिंग नाइस ऑब्वियसली इस पे हम फर्दर और आगे जाएंगे और डिटेल ऐड करेंगे एंड वी गोइंग टू कंप्लीट दिस फुल हाई डिटेल मॉडल ओके वंस इट्स कंप्लीट देन वी गो फर्दर मोर एंड मोर ओके सो लेट्स रैप अप दिस लेसन ओके